politically there are very, very difficult decisions that need to be made, Yeah, and we need to make them now. yeah, And in fact, we needed to make them yesterday. That's what the urgency is. yeah. I think um, I believe we should get some visibility in the next 5 to 7 working days where Right. we're heading towards, because IMF आपकी discussion शुरू कर रहा है on the 18th. So we have to have internal decision making done prior to that meeting. So that is a given, because we cannot delay it further from the 18th. Number one. Number two, we have budget coming up. We need to make sure कि what are we looking for in the budget. The government is in a dilemma where inflationary impact is going to be there. We have higher interest rates. But you see, interest rates को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Usually क्या होता है कि in a general scenario, अगर आप historically भी देखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो कि डिमांड को कटेल करता है, फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे आती हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर, तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, देन यू विल बी एबल टू maybe control the inflation, and maybe with over a period of time bring down the interest rates also. बट इस वक्त डिमांड पुल की वजह से नहीं हो रहा, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, और जो देर आर अदर फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन्फ्लेशन, क्या आपको इंटरेस्ट बढ़ाने से, इतना इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या डिमांड कटेल होगी? पॉइंट मेरा क्वेश्चन ये आता है कि हम मे बी वी आर इन अ डिफरेंट complete different scenario. Right. Of course, theoretically I completely understand, but practically अगर supply short है, तो it doesn't matter how many, where do I take the interest rates, inflationary impact will remain. ये मेरा अपना बिल्कुल idea है. सही. Supply chain has to be fixed. So अगर आप inflation की बात करते हैं, मुझे लगता है inflation I believe is here to stay for a bit. जब तक कि थोड़े बहुत आपकी सप्लाई चेन जो है वो मैनेज नहीं होती प्रॉपरली. पहली बात. दूसरी बात ये है, आई थिंक देर आर वेरी, एक तो कंट्री वाइड, एंड आई थिंक globally, the world powers and this largest stakeholders, crude oil side पे और सब, they also have to step up and start making decisions, because it is hurting everybody. It's not कि ये खाली पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है या इंडिया को हर्ट कर रहा है या यूरोप को हर्ट कर रहा है. It is hurting the US. It is hurting the developed countries also. उनकी भी एक लिमिट होगी जो वो इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सके. सो आई थिंक मे बी देयर माइट बी डिसीजन मेड गोइंग फॉरवर्ड कि यार जो ओपेक कंट्रीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, and we need to sort of also make sure कि यार सप्लाई चेन एटलीस्ट क्रूड ऑयल की जो है, जो कि बेसिक रीजन है इतने हायर इन्फ्लेशन का, उसको थोड़ा कंट्रोल करनी है, उस प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करनी है. बिकॉज आई थिंक सच विल हैव टू बी मेड. तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे लगता है इन्फ्लेशन थोड़ी देर रहेगी. मुझे लगता है as far as our local domestic financial and economic issues are concerned, we don't have uh, much time left to make those hard decisions. We have to make them now. And I feel by end of the month, or maybe first week of June, we should have very good clarity where we're heading. It is not, the decision is going to be easy. आसान डिसीजन नहीं होंगे. वो आपको भी हर्ट करेंगे, मुझे भी हर्ट करेंगे, एवरेज पाकिस्तानी को भी हर्ट करेंगे, बट वो बहुत ज़रूरी है. Welcome back, Nazreen. You as a enterprise, do you have a plan? देखिए उसके अंदर हमारे पास, अगर आप प्योरली हमारी बात करते हैं इस यूनिटी फूड्स की, हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि वी हैव अ पार्टनर हु इज आवर सप्लायर आल्सो, विलमार इंटरनेशनल, एंड उनके भी अपने अगर आप विलमार को देखें तो वो फ्रॉम प्रोडक्शन ऑल द वे टू ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरी वैल्यू चेन को ओन करते हैं. Right. वो हमें एक एडवांटेज ज़रूर है कि हमारी हमारी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो. But of course, for the country, it can be a bit of an issue with respect to pricing. The pricing then will stay tighter. But I feel जो जितनी भी इंडिकेशन आ रही है, बिकॉज अगर आप ये देखें 40, मैं मोटा मोटा नंबर करता हूँ, 45 मिलियन टन में से 17 उनका अपना है. Right. बाकी 28 मिलियन टन, 27 मिलियन टन दे हैव टू सेल. वो कितना रखेंगे? तो मुझे नहीं लगता ये बैन ज़्यादा देर रुकेगा. तो आई फील कि इंशाल्लाह ये इट शुड ओपन अप. Okay, great. वाजिद, आप ये बताएं कि काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं कि मई में शायद जो पाम ऑयल है वो शॉर्ट हो सकता है, इसकी किल्लत हो सकती है. अब आपके पास भी इसी तरह की बातें हैं? Thank you so much. I would also try to first chime in with Mr. Amir.
बेसिकली बहुत ज़्यादा सप्लाई उनके पास है, और इसी कमोडिटी बुल रन की वजह से इंडोनेशिया ने पिछले साल जो है तकरीबन करंट अकाउंट सरप्लस दिया है इन 10 years ऑफ राइट, अबाउट $3.3 billion. राइट, और वन ऑफ द foremost रीज़न इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हायर commodity prices, more specifically palm oil prices. तो यस, और साथ ही साथ जो है देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ फ्लोज विच आर एक्चुअली सजेस्टिंग कि अगर ये बैन रहा, बिकॉज पाकिस्तान की अगर आप टोटल इंपोर्ट्स उठा के देखें तो पाम ऑयल के अंदर तकरीबन 40% ऑफ पाम ऑयल वो हमारे पास इंडोनेशिया से आता है। तो ओके, 100% किल्लत तो नहीं कह सकते, बट देयर इज़ अ बट लाइकलीहुड। वेलकम बैक नाजरीन। ने जो है वो अपनी जो सप्लाई कट्स की थी 2020 में, उसने इतनी तेज़ी से रिवर्ट बैक नहीं की जब दुनिया को ऑयल की ज़रूरत थी और जब डिमांड थी। दिस ऑल लेड टू अ सुपर साइकिल, जिसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशनरी साइकिल आया है। और आई थिंक यूएस इन्फ्लेशन कुछ रिपोर्ट हुई है 8.3% येस्टरडे, और ये 40 ईयर हाई है यूएस इन्फ्लेशन। और इसी तरह इसी का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आया है। पाकिस्तान में सिंस ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, दूसरी कमोडिटी कोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, एलएनजी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस बहुत थी, फूड स्टॉक्स जो है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। हावेवर यहाँ उसका एक अभी वन लैग ऑफ इम्पैक्ट आना रहता है। जब हम अपनी फ्यूल प्राइसेस पास ऑन करेंगे तो एक और जो है वो इन्फ्लेशन आएगा, और फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड्स ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे, क्योंकि एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, राइट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। जो सेकेंड राउंड इम्पैक्ट आता है दूसरी चीज़ों के महंगे होने पर, वो अभी आना पाकिस्तान में रहता है, बट देयर विल बी इन्फ्लेशन समवेयर बिटवीन 15 to 20%. ओके, And then stocks that can benefit, yes, there are E&P companies which are benefiting from high oil prices. However, they are stuck in circular debt, so they cannot pay dividends. But then, yes, their profitability is high. Banks indirectly beneficial हैं, ये जो inflation हुई है इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, so they are making money. एंड देन ओके, जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ है, राइस प्राइस में काफ़ी आया है हमारे पास। फूड एक्सपोर्टर्स हैं, बट सिंस हमारे पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है उस या, तरीके से हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। बट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है हायर कमोडिटी प्राइसेस का, वो तो सिर्फ जो है वो एक्सप्लिसिटली अगर कहीं रिफ्लेक्ट होगा तो वो ऑयल स्टॉक्स में होगा, स्टार्ट होगा। कोविड में शुरू हुआ, वो अभी तक फुली रिजॉल्व नहीं हुआ था जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो गई। राइट, तो वो फिर डिस्टर्ब हुआ, पहली बात। दूसरी बात, चाइना के अंदर अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है जहाँ पे वो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक जो सप्लाई चेन की जिस डिसरप्शन है वो आई थिंक प्रोलॉन्ग हो जाएगी। राइट, वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद आपने क्रूड ऑयल की तो बात की, लेकिन अगर आप दूसरे फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिस तरीके से हम ये कमोडिटी सुपर साइकिल की बात कर रहे हैं और जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, दे उन्होंने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को बंद किया पाम ऑयल की। अब आप खाली सिर्फ नंबर्स नोट कर लें कि लास्ट ईयर में they produced about 43.5 million tons of palm oil, which is राइट, roughly close to about 60% of world's production. राइट, अगर वो अपने एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं, जिसमें 43 मिलियन टन में से तकरीबन 16.5-17 मिलियन टन की अपनी कंजम्पशन है, द रेस्ट दे यूज टू एक्सपोर्ट, राइट, विच इज अबाउट 728 मिलियन टन। सो जब वो डिसरप्शन आई तो हमने देखा कि एकदम स्पाइक आया प्राइस के अंदर। राइट, अब ये वो वाले ये एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैज़ टू मैनी मूविंग पार्ट्स। एक दूसरी बात, अगर आप मलेशिया में देखें, मलेशिया की प्रोडक्शन थी रफली अबाउट 17.8 17.9 मिलियन टन्स की पाम ऑयल की राइट, लास्ट ईयर। मलेशिया में जो एक डिसरप्शन आई थी, वो उनके तकरीबन अगर आप देखें पाम ऑयल की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे ऑन एवरेज 5 लाख लोग काम करते हैं। उस 5 लाख लोगों में से 75% जो है वो फॉरेन वर्कर्स हैं।
अब जब कोविड का डिसरप्शन हुआ तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ट्रैवलिंग कैंसिल हो गई, लोग वापस चले गए, वो नहीं आ सके, तो वो भी आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अब थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग हमें जरूर नजर आ रही है कि इंडोनेशिया ने इंडिकेट किया है कि वो इन द नेक्स्ट 2 to 4 weeks वो अपना जो एक्सपोर्ट का बैन है वो शायद रिमूव कर दें, बिकॉज दे सी अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग इन फ्रॉम यूरोप। अब यूरोप में ज़्यादा डिमांड पाम ऑयल की क्यों आ रही है? अगेन देयर इज अनदर मूविंग पार्ट। इफ यू लुक एट रशिया एंड यूक्रेन, दे प्रोड्यूस रफली अबाउट I think 59% of total वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन, राइट जो कि एक्सपोर्ट होता था ज़्यादा यूरोप में, अब वो डिसरप्ट हो गया। अब वो उसने एक वॉइड क्रिएट किया, उसको वॉइड को पूरा करने के लिए आई एम श्योर ये जो प्राइसेस अभी जो ये एक्सपोर्ट खुलेगा इंडोनेशिया का, जो कि एक्सपेक्टेड है, देर सेइंग कि खोलते हैं, नहीं खोलते, नहीं खोलते, वील हैव टू सी, बट अभी तक तो इंडिकेशन ये है कि दे विल ओपन बिटवीन इन द नेक्स्ट 2 to 4 weeks। वो खुल जाए तो वो उसको सप्लाई को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम देखते हैं। अगर आप प्राइसेस भी देखें तो आज का स्पॉट रेट अगर पाम ऑयल का देखें, रॉयटर्स पे कोट हो रहा है $1680 $1,680 पर मेट्रिक टन। अगर मैं आज मतलब, लेकिन उस पे आपको सप्लाई बहुत बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं जून की प्राइसेस देखूं, ये एफओबी प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जून की प्राइसेस देखूं तो वो थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये सप्लाई जो है ये खुलती है तो प्राइसेस शुड रिलेटिवली रिड्यूस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आप वीट को भी देखें, वीट की अगर आप प्राइसेस देखें, द वे वीट प्राइसेस हैव मूव्ड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जुलाई 2021 में 2021 में इट हैड सीन अ लो ऑफ अबाउट $197 पर टन राइट वीट, जो कि आज तकरीबन 400, मेरे ख्याल है 413, 410, $413 पर टन पे चला गया है। राइट और वो अगे वो यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो उसने उसको डेफिनेटली डिसरप्ट किया है। So again, saying कि अभी it's difficult to say कि where we are heading, how long this cycle is going to go, because there are too many moving parts, as I said. Even अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देख लें, जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपकी तकरीबन अगर आपको पड़ती थी $30 पर टन, वो आज $60-65 पर टन पे चली गई है, तो वो भी तकरीबन डबल हो गई। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ sort of uncertainty. But again, as I said, अगर खाली पाम ऑयल का थोड़ा सा ईज ऑफ होता है, अच्छा उसमें एक और भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस दफा जो एक्सपेक्टेशन है वेदर की भी, लास्ट फॉर द लास्ट 2 3 years we've gone through the El Nino weather effect, जो राइट कि रेंज को डिस्टर्ब करता है इंडोनेशिया मलेशिया में। राइट वो एक्सपेक्टेड है कि इस सीजन में वो इफेक्ट नहीं होगा, तो रेंज शुड बी बेटर, सो यील्ड शुड बी स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर। तो वो एक पॉजिटिव वो है। सो होपफुली इंशाल्लाह इफ द प्राइसेस stabilize or come down from these levels, so it should be good for Pakistan. है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद दालें, गंदम और बेशतर चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करता है। एडिबल ऑयल, बनास्पति घी जिससे बनता है, वो जो रॉ मटेरियल है वो चीज़ें भी जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस है, IMF की किस्तों का लोड है, डाउन द रोड 1 सवा साल में $10 बिलियन की पेमेंट्स खड़ी हुई हैं, और पाकिस्तान के पास जो इंपोर्ट बिल को सस्टेन करने की कैपेसिटी है वो 5 हफ्तों से कम पर आ चुकी है। इसको समझने के लिए वी हैव गॉट विद अस 3 पर्सन्स। एक हैं अली नवाज़, ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ चेस सिक्योरिटीज़। फिर मौजूद हैं हमारे साथ आमिर शहजाद, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनिटी फूड्स लिस्टेड कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फिर हमारे साथ मौजूद हैं Wajid, he is the analyst working for JS Global brokerage house. So इन तीनों से वन बाय वन हम पूछेंगे कि इनकी नज़र में ये जो कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल है ये पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह इम्पैक्ट करने जा रहा है। दे माइट बी सर्टन स्टॉक्स और सर्टन सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट्स के जो जिनको फ़ायदा भी हो रहा हो, बट नास के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। पहले इन जनरल अली नवाज से कहते हैं कि वो एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ दिस सिचुएशन। Sir, it all started with COVID 2020, year 2020, when there was a supply disruption due to lockdowns across the world.
वहाँ पर एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई, और उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी नॉर्मलाइज हुई, देयर वाज अ पेंट अप डिमांड, और उस कोविड वाली इकोनॉमिक डाउनटर्न से निकलने के लिए फेड ने बहुत फ्री मनी जो है वो पंप इन किया सिस्टम में, जिसकी वजह से इकोनॉमी तो रिवाइव हो भी गई, बट एट अ लेटर स्टेज वो जाकर काफ़ी हीट अप हो गई, विच लेड के टू डिमांड इंक्रीज। सामने से आपके पास सप्लाई डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ अभी नॉर्मल नहीं थी, वो फेज़ वाइज ग्रेजुअली उनकी सप्लाई जो है वो नॉर्मलाइज हुई, जबकि डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से वापस आई। दिस लेट to increase in commodity super cycle, to start of a commodity super cycle. Then then what happened was कि this year there was a Russia Ukraine conflict, जिसने चीज़ को further amplify कर दिया, और रशिया जो कि एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर था, और डिफरेंट और एनर्जी गैस वगैरह एक्सपोर्ट करता था यूरोप को, उस पर सैंक्शन लगे, वहाँ की सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई, ईरान पर ऑलरेडी सैंक्शंस है, वो फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो ये ओपेक ने जो है वो अपनी जो सप्लाई कट्स की थी 2020 में, उसने इतनी तेज़ी से रिवर्ट बैक नहीं की जब दुनिया को ऑयल की ज़रूरत थी और जब डिमांड थी। दिस ऑल लेड टू अ सुपर साइकिल, जिसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशनरी साइकिल आया है। और आई थिंक यूएस इन्फ्लेशन कुछ रिपोर्ट हुई है 8.3% येस्टरडे, और ये 40 ईयर हाई है यूएस इन्फ्लेशन। और इसी तरह इसी का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आया है। पाकिस्तान में सिंस ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, दूसरी कमोडिटी कोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, एलएनजी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस बहुत थी, फूड स्टॉक्स जो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। हावेवर यहाँ उसका एक अभी 1 लाख ऑफ इम्पैक्ट आना रहता है, जब हम अपनी फ्यूल प्राइसेस पास ऑन करेंगे तो एक और जो है वो इन्फ्लेशन आएगा, और फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड्स ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे, क्योंकि एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। जो सेकेंड राउंड इम्पैक्ट आता है दूसरी चीज़ों के महंगे होने पर, वो अभी आना पाकिस्तान में रहता है, बट देयर विल बी इन्फ्लेशन सम बिटवीन 15 to 20%. Okay. And then stocks that can benefit, yes, there are E&P companies which are benefiting from high oil prices. However, they are stuck in circular debt, so they cannot pay dividends. But then, yes, their profitability is high. Banks indirectly beneficial हैं, ये जो inflation हुई है इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, so they are making money. एंड देन Okay. जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ है, राइस प्राइस में काफ़ी इंक्रीज आया है हमारे पास, फूड एक्सपोर्टर्स हैं, बट सिंस हमारे पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है उस Yeah. तरीके से हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। बट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है हायर कमोडिटी प्राइसेस का, वो तो सिर्फ जो है वो एक्सप्लिसिटली अगर कहीं रिफ्लेक्ट होगा तो वो ऑयल स्टॉक्स में होगा, स्टार्ट हुआ है। Welcome back, Nazreen. Amir Saab, I would want you to kindly comment कि how does it impact Pakistan? I think देखिए इसको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। इट हैज मेनी मूविंग पार्ट्स राइट नाउ। Right. सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की हमने अभी बात की, जो कि कोविड में शुरू हुआ, वो अभी तक फुली रिजॉल्व नहीं हुआ था जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो गई। Right. तो वो फिर डिस्टर्ब हुआ, पहली बात। दूसरी बात, चाइना के अंदर अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है जहाँ पे वो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक जो सप्लाई चेन की जिस डिस्ट्रप्शन है वो आई थिंक प्रोलॉन्ग हो जाएगी। Right. वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद आपने क्रूड ऑयल की तो बात की, लेकिन अगर आप दूसरे फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिस तरीके से हम ये कमोडिटी सुपर साइकिल की बात कर रहे हैं और जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, दे उन्होंने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को बंद किया पाम ऑयल की। अब आप खाली सिर्फ नंबर्स नोट कर लें कि लास्ट ईयर में
they produced about 43.5 million tons of palm oil, which is roughly close to about 60% of world's production. Right. अगर वो अपने एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं, जिसमें 43 मिलियन टन में से तकरीबन 16.5-17 मिलियन टन की अपनी कंजम्पशन है, the rest they used to export, which is about 728 million tons. So जब वो डिसरप्शन आई तो हमने देखा कि एकदम स्पाइक आया प्राइस के अंदर. अब ये वो वाले ये एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना जरूरी है बिकॉज इट हैज टू मेनी मूविंग पार्ट्स. एक दूसरी बात, अगर आप मलेशिया में देखें, मलेशिया की प्रोडक्शन थी रफली अबाउट 17.8 17.9 मिलियन टन्स की पाम ऑयल की लास्ट ईयर. मलेशिया में जो एक डिसरप्शन आई थी वो उनके तकरीबन अगर आप देखें पाम ऑयल की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे ऑन एवरेज 5 लाख लोग काम करते हैं. उस 5 लाख लोगों में से 75% जो है वो फॉरेन वर्कर्स हैं. अब जब कोविड का डिसरप्शन हुआ तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ट्रैवलिंग कैंसिल हो गई, लोग वापस चले गए, वो नहीं आ सके, तो वो भी आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ. अब थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग हमें जरूर नज़र आ रही है कि इंडोनेशिया ने इंडिकेट किया है कि वो इन द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स वो अपना जो एक्सपोर्ट का बैन है वो शायद रिमूव कर दें बिकॉज दे सी अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग इन फ्रॉम यूरोप. अब यूरोप में ज़्यादा डिमांड पाम ऑयल की क्यों आ रही है? अगेन देयर इज अनदर मूविंग पार्ट. इफ यू लुक एट रशिया एंड यूक्रेन, they produce roughly about I think 59% of total world sunflower oil production, जो कि एक्सपोर्ट होता था ज़्यादा यूरोप में. अब वो डिसरप्ट हो गया. अब वो उसने एक वॉइड क्रिएट किया. उसको वॉइड को पूरा करने के लिए आई एम श्योर ये जो प्राइसेस अभी जो ये एक्सपोर्ट खुलेगा इंडोनेशिया का, जो कि एक्सपेक्टेड है, देर सेइंग कि खोलते हैं, नहीं खोलते वील हैव टू सी, बट अभी तक तो इंडिकेशन ये है कि दे विल ओपन बिटवीन इन द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स. वो खुल जाए तो वो उसको सप्लाई को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम देखते हैं. अगर आप प्राइसेस भी देखें तो आज का स्पॉट रेट अगर पाम ऑयल का देखें, रॉयटर्स पे कोट हो रहा है $1680 पर मेट्रिक टन. अगर मैं आज मतलब लेकिन उस पर आपको सप्लाई बहुत बहुत लिमिटेड है. लेकिन अगर मैं जून की प्राइसेस देखूं, ये एफओबी प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जून की प्राइसेस देखूं तो वो थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये सप्लाई जो है ये खुलती है तो प्राइसेस शुड रिलेटिवली रिड्यूस. तो वो हमें नजर आ रहा है तकरीबन $1620 पर टन का, जो अगर आप जून का फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो. इफ यू आस्क मी, आई थिंक एक दफा ये खुलता है तो वी शुड सी relative price reduction in palm oil. अब उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान इज फेसिंग आपका food inflation is major concern, especially for I mean for everybody, for every citizen, and especially for the government also at this point in time. So अगर ये चीज़ थोड़ी बहुत ऑफ हो जाती है तो going forward it may help the country in controlling to a certain extent the जो आपका वो है food inflation, because palm oil is one of the largest items that we import on the food side. छोटा सा ये पाम ऑयल का हो गया. अगर आप वीट को भी देखें, वीट की अगर आप प्राइसेस देखें, द वे वीट प्राइसेस हैव मूव्ड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जुलाई 2021 में 2021 में it had seen a low of about $197 per ton wheat, जो कि आज तकरीबन 400, मेरे ख्याल है 413 410 $413 पर टन पे चला गया है. और वो यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो उसने उसको डेफिनेटली डिसरप्ट किया है. So again, saying कि अभी it's difficult to say कि where we are heading, how long this cycle is going to go, because there are too many moving parts, as I said. Even अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देख लें, जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपकी तकरीबन अगर आपको पड़ती थी $30 पर टन, वो आज $60-65 पर टन पे चली गई है, तो वो भी तकरीबन डबल हो गई. तो all of those things are causing a lot of sort of uncertainty. But again, as I said, अगर खाली पाम ऑयल का थोड़ा सा ईज ऑफ होता है, अच्छा उसमें एक और भी सिल्वर लाइनिंग भी है कि इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन है वेदर की भी, for the last 2-3 years we've gone through the El Niño weather effect, जो कि रेंज को डिस्टर्ब करता है इंडोनेशिया मलेशिया में. वो एक्सपेक्ट है कि इस सीजन में वो इफेक्ट नहीं होगा, तो रेंज शुड बी बेटर, सो यील्ड शुड बी स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर. तो वो एक पॉजिटिव वो है. So hopefully, inshallah, if the prices stabilize or come down from these levels, so it should be good for Pakistan. Okay, great.
आमिर ये बताएं कि जस्ट इन केस अगर ये एक्सपोर्ट का बैन लिफ्ट नहीं करता इंडोनेशिया, सो यू एज अ एंटरप्राइज डू यू हैव अ प्लान? देखिए उसके अंदर हमारे पास, अगर आप प्योरली हमारी बात करते हैं इस यूनिटी फूड्स की, हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि वी हैव अ पार्टनर हु इज आवर सप्लायर आल्सो, विलमार इंटरनेशनल, एंड उनके भी अपने अगर आप विलमार को देखें तो वो फ्रॉम प्रोडक्शन ऑल द वे टू ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरी वैल्यू चेन को ओन करते हैं। राइट। वो हमें एक एडवांटेज ज़रूर है कि हमारी हमारी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो। But of course, for the country, it can be a bit of an issue with respect to pricing. The pricing then will stay tighter. But I feel जो जितनी भी इंडिकेशन आ रही है, बिकॉज अगर आप ये देखें 40, मैं मोटा मोटा नंबर करता हूँ, 45 मिलियन टन में से 17 उनका अपना है, राइट। बाकी 28 मिलियन टन, 27 मिलियन टन दे हैव टू सेल। वो कितना रखेंगे? तो मुझे नहीं लगता ये बैन ज़्यादा देर रुकेगा। तो आई फील कि इंशाल्लाह ये शुड ओपन अप। ओके, ग्रेट। वाजिद आप ये बताएं कि काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं कि मई में शायद जो पाम ऑयल है वो शॉर्ट हो सकता है, इसकी किल्लत हो सकती है। आपके पास भी इसी तरह की बातें हैं? Thank you so much. I would also try to first chime in with Mr. Amir. बेसिकली बहुत ज़्यादा सप्लाई उनके पास है और इसी कमोडिटी बुल रन की वजह से इंडोनेशिया ने पिछले साल जो है तकरीबन करंट अकाउंट सरप्लस दिया है इन 10 years ऑफ अबाउट $3.3 billion. राइट। और one of the foremost reason is obviously because of higher commodity prices, more specifically palm oil prices. तो yes, और साथ ही साथ जो है देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ फ्लोज विच आर एक्चुअली सजेस्टिंग कि अगर ये बैन रहा, बिकॉज पाकिस्तान की अगर आप टोटल इंपोर्ट्स उठा के देखें तो पाम ऑयल के अंदर तकरीबन 40% ऑफ पाम ऑयल वो हमारे पास इंडोनेशिया से आता है। तो 100% किल्लत तो नहीं कह सकते, बट देयर इज़ अ बट लाइकलीहुड इफ़ क्या दिस बैन। इंडोनेशिया दुनिया में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है? जी, लाइक आमिर साहब ने एक्सप्लेन भी किया बहुत अच्छा There is- कि 60% सप्लाई जो है दुनिया भर की वो इंडोनेशिया करता है। इट हैज़ सच सरप्लस कैपेसिटी, और डिस्पाइट आफ्टर फुलफिलिंग इट्स ओन डिमांड 16 मिलियन टन की, हमारी पाकिस्तान की डिमांड तकरीबन 3 मिलियन टन की। राइट। ठीक है, तो उसमें से हम किसी हद तक 40% हम इंडोनेशिया से सोर्स करते हैं, काफ़ी हद तक हम सिंगापुर मलेशिया से सोर्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक तो पोटेंशियल बेयरिंग ऑफ दिस बैन हैज़ ऑन आवर इम्पोर्ट बिल, बिकॉज़ ये प्राइसेस को और स्केल अप कर सकता है अगर ये सस्टेन करता है बैन। और साथ ही साथ जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे सप्लायर्स हैं, उनके पास भी डिफरेंट रीजनल कंट्रीज से डिमांड आ रही है, राइट। जिसकी वजह से हमें उनकी साइड से भी एक शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है अगर ये सस्टेन होता है। बट लाइक मिस्टर आमिर सेड, Indonesia's government is being actually approached by a lot of stakeholders globally, और पिछले 1-2 हफ्ते से ऐसे ही न्यूज़ फ्लोज हमने देखे हैं कि दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू स्टार्ट contemplating over lifting of this ban, because initially जब इंडोनेशिया ने ये इम्प्लीमेंट किया था तो उन्होंने पाम ऑयल, मतलब बेसिकली एडिबल ऑयल और उसके दूसरे वेरिएंट्स के ऊपर किया था, और उन्होंने क्रूड पाम ऑयल पे नहीं किया था। बट विद इन अ फ्यू डेज़ और सो उन्होंने क्रूड पाम ऑयल पे भी बैन कर दिया था, जो कि एक मैसिव शॉर्टेज क्रिएट करती हैं फॉर द ग्लोबल मार्केट। सो येस, एक तो ये कि, और इसी की वजह से अगर आप उठा के देखें हमारे पास एक इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस तरह से है कि अगर आप सिर्फ कुकिंग ऑयल और घी और ये सारे वेरिएंट्स जो आपकी CPI बास्केट में आते हैं, इनका है तो टोटल तकरीबन 2% ऑफ द इंटायर CPI इंडेक्स वेटेज। बट एट द सेम टाइम अगर आप रिसेंट जो हमारी मंथली इन्फ्लेशन आई है 3% मंथ ऑन मंथ फूड इन्फ्लेशन, उसमें 0.5 to 0.6% सिर्फ कुकिंग ऑयल से आया, जो कि तकरीबन मतलब बेसिकली हम इससे पहले ये देखते आ रहे थे कि हमारे पास सीजनैलिटीज़ की वजह से टमाटर की कभी प्रोडक्शन कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई ड्यू टू लंपी काउ स्किन डिजीज़। तो वो उसकी वजह से हमें दूसरे वेरिएंट्स में दिख रहा था, हमें ऑयल और घी में इतना ज़्यादा स्पाइक्स नहीं दिख रहे थे, बट रिसेंटली हमने ये दिखा।
तो इसका सस्टेन करना इंडोनेशिया के लिए भी एक्चुअली बारे में नहीं है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट द प्राइसेस आर नियर ऑल टाइम हाइज, मतलब जो मार्च में हमने ऑल टाइम हाई देखा था पाम ऑयल प्राइसेस का, इंडोनेशिया विल इवेंचुअली ब्रिंग बैक इक्विलिब्रियम टू द बट मार्केट। वाजिद ये 3 टाइम्स बढ़ गई हैं 2020 से अब तक, यू थिंक कि इसमें सस्टेन कर रही हैं तो बढ़ भी सकती हैं प्राइसेस? देखें, जो हमने मार्च में बिल्कुल एक स्पाइक देखा था, बहुत ही हाईएस्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स, वो लेवल तो अभी तक अचीव दोबारा से नहीं हुआ है, इस पे इवन आफ्टर द बैन। एंड यू डिड और नॉट रिस्पॉन्डेड कि ये आपको भी किल्लत दिखती है मई में? यस एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट। तो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि ये जितने भी पाम ऑयल इंपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, तो इनके पास एक रनवे है ऑफ इन्वेंट्री। तो ये बहुत ही एब्सोलूट शॉर्टेज नहीं हो जाएगी, बट मैं आपको एक थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ बता दूं। इस वक्त आप नॉर्मली हाइपर स्टार्स में जाएं, इवन इम्तियाज़ स्टोर्स आई में कैन जाएं, सी तो के वहाँ आपके सामने बल्क, नोटिस लगा होता है कि यू कैन नॉट स्टार्ट बल्क बाइंग इन एडिबल ऑयल और घी, राइट, विच एक्चुअली इज़ एन इंडिकेटर के ग्राउंड लेवल पर भी गवर्नमेंट और डिफरेंट बॉडीज़ जो इसकी इम्पोर्टिंग बॉडीज़ हैं, जो यस सर। बनास्पति की पाकिस्तान की एसोसिएशन है, वो इस तरह के मेजर्स ले रही हैं टू बी एबल टू सस्टेन दिस बैन बाय इंडोनेशिया। राइट, ग्रेट। आमिर साहब, मैं चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करें इन इजी टर्म्स कि कितनी क्रूशल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बहुत ज़्यादा, व्हेन यू लुक एट द पॉलिटिकल सिचुएशन, तो वहाँ पे भी थोड़े से चैलेंजेस हैं। आपको कितनी जल्दी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं इन्फ्लेशन विज़ दिस कमोडिटी बुल रन? देखिए, मैं आपको पर्सनल व्यू जरूर दे सकता हूँ। इसके अंदर देखें, politically there are very very difficult decisions that need to be made, या and we need to make them now, या and in fact we needed to make them yesterday. That's what the urgency is. या I think, um, I believe we should get some visibility in the next 5 to 7 working days where राइट, we're heading towards, because IMF आपकी discussion शुरू कर रहा है on the 18th. So we have to have internal decision making done prior to that meeting. So that is a given, because we cannot delay it further from the 18th. Number one. Number two, we have budget coming up. We need to make sure कि what are we looking for in the budget. The government is in a dilemma where inflationary impact is going to be there. We have higher interest rates. But you see, interest rates को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Usually क्या होता है कि in a general scenario, अगर आप historically भी देखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो कि डिमांड को कटेल करता है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आती हैं, इंटरेस्ट रेट, तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, देन यू विल बी एबल टू maybe control the inflation, and maybe with over a period of time bring down the interest rates also. बट इस वक्त डिमांड पुल की वजह से नहीं हो रहा, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, और जो देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन्फ्लेशन, क्या आपको इंटरेस्ट बढ़ाने से, इतना इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या डिमांड कटेल होगी? पॉइंट, मेरा क्वेश्चन ये आता है कि हम मे बी वी आर इन अ डिफरेंट, complete different scenario. राइट, Of course, theoretically I completely understand, but practically अगर supply short है, तो it doesn't matter how many, where do I take the interest rates, inflationary impact will remain. ये मेरा अपना बिल्कुल आइडिया है. सही। Supply chain has to be fixed. So अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है इन्फ्लेशन, I believe, is here to stay for a bit. जब तक कि थोड़े बहुत आपकी सप्लाई चेन जो है वो मैनेज नहीं होती प्रॉपरली, पहली बात. दूसरी बात ये है, आई थिंक देर आर वेरी, एक तो कंट्री वाइड, एंड आई थिंक globally, the world powers and this largest stakeholders, crude oil side पे और सब, they also have to step up and start making decisions, because it is hurting everybody. It's not कि ये खाली पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है या इंडिया को हर्ट कर रहा है या यूरोप को हर्ट कर रहा है. It is hurting the US. It is hurting the developed countries also. उनकी भी एक लिमिट होगी जो वो इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सके. So I think maybe there might be a decision made going forward कि यार जो OPEC countries हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं. And we need to sort of also make sure कि यार supply chain, at least crude oil की जो है, जो कि basic
रीज़न है इतने हायर इन्फ्लेशन का, उसको थोड़ा कंट्रोल करना या उस प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करना। बिकॉज़ आई थिंक सच विल हैव टू बी मेड। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे लगता है इन्फ्लेशन थोड़ी देर रहेगी। मुझे लगता है एज़ फार एज़ आवर लोकल डोमेस्टिक financial and economic issues are concerned, we don't have uh, much time left to make those hard decisions. We have to make them now. And I feel by end of the month or maybe first week of June, we should have very good clarity where we're heading. It is not, the decision is going to be easy. आसान डिसीजन नहीं होंगे, वो आपको भी हर्ट करेंगे, मुझे भी हर्ट करेंगे, एवरेज पाकिस्तानी को भी हर्ट करेंगे, बट वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस वक्त लेना। वो उसके सब मुझे लगता है स्टेप्स ज़रूर होंगे। राइट, ग्रेट। सो व्हेन यू सेड वो आपको भी हर्ट करेंगे, तो ज़िमनन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जब टफ डिसीजंस ले लेगी, गंदम की कीमतों में इजाफा ओवरड्यू दिखता है, पाम ऑयल की सिचुएशन हमने डिस्कस की, क्रूड पाम ऑयल के ऊपर भी वही तकरीबन सिचुएशन है, उससे तकरीबन बुरी सिचुएशन है बल्कि। सो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसले आपको भी करने होंगे कि ये पास ऑन कैसे करें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर आप देखेंगे तो स्पेशली ऑन द साइड कि आप ये जो फूड कमोडिटीज़ की आप बात करते हैं, राइट, उसमें प्राइसेस नॉर्मल साइकिल की प्राइसेस इंक्रीज़ रिलेटिवली ईज़ियर है, पास ऑन हो जाती हैं। बट ये जो आप सुपर साइकिल और ये जो हायर रेट्स की आप बात कर रहे हैं, वो अभी तक तो हम वी बीन एबल टू पास देम। राइट, और एग्जांपल यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू सेल्स बहुत बढ़ गई हैं। नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स बट आवर कंपेटिटर्स आल्सो। तो वो गवर्नमेंट की बहुत हो सकता है गवर्नमेंट उस साइड पे बहुत एक्सपेंशन पे चली जाए कि वहाँ पे एक लेवल की सब्सिडी देगी, वो एक पॉसिबिलिटी है। देन अगेन ऑन दी ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं अगेन पाम ऑयल की साइड पे हमारा जितनी भी जो फीडबैक हमें मिल रहा है वी आर कॉन्फिडेंट कि ये जो आपका इंटरनेशनल बैन इंडोनेशिया का वो हट जाएगा इंशाल्लाह ताला। राइट, वो प्राइसेस रिलेटिवली यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकती हैं और यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकती है। ओके, तो दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक वी शुड वेट एंड सी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months एंड देन विल सी हाउ वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज आवर वे फॉरवर्ड। ओके, ग्रेट। सो आमिर, वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। मैं जी चाहूँगा आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। नहीं बस यही कि आई थिंक we as citizens of this country we have to be ready for what is coming our way. हालात आसान नहीं रहेंगे, हालात मुश्किल रहेंगे, लेकिन ये कि हम लोगों को उसका रास्ता ढूंढना है। अगर राइट, हम रास्ता नहीं ढूंढते हैं तो द वर्स्ट इज येट टू कम। लेकिन अगर हम रास्ता ढूंढ लेते हैं और मुश्किल डिसीजंस लेके आगे बढ़ते हैं देन वी हैव टू मूव टुगेदर। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलना और वो इट इज गोइंग टू हर्ट एवरीबडी। राइट, हम लोगों को वी हैव टू वर्क एंड फोकस ऑन द इकोनॉमी एंड गेट दिस थिंग बैक ऑन ट्रैक। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज चैलेंजेस खाली इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास इंटरनल चैलेंजेस, अगर हम इंटरनल चैलेंज अच्छे मैनेज कर जाएं तो एटलीस्ट हम मिल के बाहर के चैलेंजेस भी देख सकते हैं। तो वो आई थिंक वी हैव टू बी रेडी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और दूसरा बाकी आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड कि होपफुली इंशाल्लाह जो हमारी एक्सपेक्टेशन वो पूरी हो जाए तो हम राइट ट्रैक पे आ जाएं। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारे साथ पिछले सेगमेंट में मौजूद थे आमिर शहजाद, जो कि गुज़श्ता 22 सालों से कैपिटल मार्केट से मुंसलिक हैं और आजकल यूनिटी फूड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ही मेड अ कपल ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग द कमोडिटी प्राइसिंग साइकिल, रादर कमोडिटी प्राइसेस बुल रन, और दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान के हिसाब से इंतहा इम्पॉर्टेंट हैं in relation to the wheat price and the edible oil prices। वाजिद से मैं चाहूँगा कि ये अपना व्यू दें और हमें बताएं कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा सीरियस मामला होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ commodity prices, especially these wheat and edible oil prices। राइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं वन बाय वन कुछ कमोडिटीज़ हैं जो हमारी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से या इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक वीट की शॉर्टेज है
और उस वीट की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमने पिछले साल भी 3 मिलियन टन से ज़्यादा वीट इंपोर्ट की थी, इस साल भी करेंगे। बट पिछले साल जो हमारी एवरेज वीट की इंपोर्ट प्राइस थी वो तकरीबन $200 पर टन थी। इस वक्त तकरीबन हमें जो पड़ेगी वीट पूरे साल का इंपोर्ट लगभग वो तकरीबन $400, 370 से $400 पर टन के आसपास पड़ेगा। तो वीट का एक बेरिंग नहीं बन पाता हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर, बिकॉज़ वीट की प्राइसेस डिस्पाइट द फैक्ट कि हम हायर प्राइसेस पे इंपोर्ट करते आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक सपोर्ट होती है, स्पेशली डिफरेंट बॉडीज़ लाइक पैस्को एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट बॉडीज़। बट जहाँ तक पाम ऑयल प्राइसेस की बात है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जैसे यूनिटी फूड्स हो गए एट्सेट्रा, ये सब लोग जो हैं पास ऑन करते हैं। और जब वो पास ऑन करते हैं पाम ऑयल प्राइसेस को, तो उसका एक नेगेटिव बेरिंग आ जाता है हमारी इन्फ्लेशन पे। राइट। तो जैसे कि आमिर साहब ने एक बात कही कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, और साथ ही साथ जो है हमें सप्लाई को इंटैक्ट रखना चाहिए। आई वुड कोरॉबरेट विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऐड सम मोर पॉइंट्स कि हम जो है एक लेवरेज्ड इकॉनमी नहीं है। दुनिया भर में जो डिफरेंट डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वो लेवरेज्ड इकॉनमी होती हैं, तो उनमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी कंजम्पशन पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं दे डोंट यूज़ प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा फॉर कंजम्पशन, और उनके ऊपर उनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा लेवरेज्ड हैं, हमारे यहाँ कम लेवरेज है, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट्स का ऑन डिमांड वो इतना एब्सोल्यूट लेवल्स पे नहीं होता जितना दुनिया भर में होता है। तो येस, आप यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो सप्लाईज पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बजाय इसके डिमांड पे बहुत एब्सोल्यूट लेवल्स पे बढ़ाए, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स लाइक लग्जरी जैसे कार इंपोर्ट्स वगैरह। तो राइट। एक इसका चीज़ चाहूँगा, बाय द वे आप थोड़ा सा क्लियर करें कि ही सेड कि इनकी जो 50% से ज़्यादा की इंपोर्ट है बिकॉज दे हैव गॉट ए स्टेक होल्डर, और वो सप्लाईज उसी की तरफ से आ जाती हैं, तो इनके पास चैलेंज इतना स्वेयर नहीं है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई थिंक ग्राउंड रियलिटी तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगी, बट थोड़ा बट सा दिस इज़ अगर आप उनकी बात से ही ये डिसाइफर इंफॉर्मेशन तो करें। डिस्क्लोज्ड जी इंफॉर्मेशन होती है, दिस इज़ पार्ट ऑफ जी देयर बिल्कुल, इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली आई मीन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एग्जैक्टली। सो बट अगर आप उस बात से डिसाइफर करें कि दे हैव एन स्पेसिफिक स्टेक होल्डर विलमार के नाम से, राइट। इंटैक्ट एंड एवरीथिंग, तो वो बेसिकली उनको एक हद तक सप्लाई मेंटेन करके रखता है। राइट। और अगर विलमार इंटरनेशनल है और वो एक सप्लायर है इनका, तो वो सप्लायर के पास भी, चूँकि ये ग्लोबल शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है बैन, राइट। इंडोनेशिया के का जो एक्सपोर्ट बैन है, तो उस ग्लोबल शॉर्टेज में आई थिंक अ लॉट ऑफ सप्लायर्स विल कम इनटू द एम्बिट। तो हैविंग अ स्पेसिफिक लीड ऑफ सप्लायर्स जिसके पास से आपको एक प्रॉपर चैनल से आपको सप्लाई मिलती हो पाम ऑयल की, और आप अपने रिफाइनिंग यूनिट में उसको रिफ़ाइन करके बेचते हो, बट किसी हद तक दैट डज़ नॉट इंश्योर कि आपकी 100% जो सप्लाईज हैं जो बिफोर द बैन थी वो उतनी ही रहेंगी। बट इफ़ देयर इज़ अ ग्लोबल क्राइसिस, वो तो फिर सारी दुनिया में मसाइल होंगे। बट इफ़ एग्जैक्टली थिंग्स आर लेस देन सुपर नॉर्मल, जी, तो फिर चीज़ें आपको इतनी बुरी नहीं दिखती। लाइक इन पर्टिकुलर टू दे बीइंग हैविंग Wellmark as a stakeholder and the supplier of raw material. जी बिल्कुल, चूँकि अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज़ विल गेट अफेक्टेड, तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ विच हैव स्टार्टेड प्लीडिंग इंडोनेशियन गवर्नमेंट कि आप जो है इस एक्सपोर्ट बैन को फ़ौरन लिफ्ट करें। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उनकी एक स्पेसिफिक डिमांड है 16 मिलियन टन, और Right. उनकी जो सप्लाई है वो तकरीबन 44 मिलियन टन की 45, yeah. सप्लाई। तो वो जो डिफरेंशियल है वो किस हद तक अपने पास होल्ड करके रखेंगे, कब तक कर रख सकते हैं, उनके पास भी एक लिमिट होती है रिजर्वॉयर्स की, स्टोरेज स्पेस की। तो इस तरह के जो बैन जो कंट्रीज़ खुद लगा देते हैं, वो फिर अगर अपने सप्लायर्स को या अपने जो पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं या पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उनकी सप्लाई अगर बंद कर देंगे, तो उनके पास भी एक ग्रोथ या जीडीपी की एक तरह से Right. खसारे शुरू हो वाजिद, जाएंगे, मैं बिकॉज चाहूँगा आखिर में सिर्फ आप एक चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें
कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन के ग्लोबल शॉर्टेज है और वो प्राइसेस को फर्दर बढ़ा सकते हैं? पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म का चैलेंज मौजूद है और पाकिस्तान में बात हो रही है कि जो ख़ास तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूँ कह लें कि मेकअप से लेकर और कॉस्मेटिक्स और दूसरी तीसरी चीज़ें, इस पर तो गवर्नमेंट बैन लगाने की बात कर रही है। दिस फेयरली रिफ्लेक्ट्स के करेंसी के भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। सो इसकी वजह से महंगाई भी आपको होती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल। अगर मैं अपने एस्टिमेशंस बताऊं आपको, तो अगर यहाँ से गवर्नमेंट अनवाइंड करती है रिलीफ पैकेज, तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव बेरिंग है आपकी इन्फ्लेशन पे। और आपकी इन्फ्लेशन 16.5% जून में, अगर ये मई के बीच में ये डिसीजन हो जाता है कि ये हमने जो रिलीफ पैकेज दिया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे हो चाहे रिटेल फ्यूल्स पे हो, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। और ये तो एक आपको फर्स्ट राउंड एक इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ भाई, जून में हमारी 16.5% तक की या जून जुलाई की इन्फ्लेशन आ रही है। बट इसका एक सेकेंडरी इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि ये जितने भी आपके पास फूड सप्लाई चैनल्स हैं, बट द बॉटम ट्रैक्टर्स। लाइन यू थिंक कि ये 15% जो बातें हो रही है महंगाई की, आपको दिखता है इन्फ्लेशन 15% जी के साथ? बिल्कुल। मतलब मैं आपको सिर्फ एक डीज़ल की एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट। इस वक्त डीज़ल जो है वो 150 रुपये पर लीटर है। पिछले साल 110 रुपये पर लीटर था इसी महीने के। राइट। और उस 110 रुपये के अंदर तकरीबन 16-17 रुपये पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, शामिल थी। राइट। हम इस वक्त जो 150 रुपये पर लीटर दे बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, इसमें 70 रुपये सब्सिडी है। राइट। वो 70 रुपये अगर आप ऐड ऑन करें तो वो 220 रुपये हो जाता है। और अगर साथ ही साथ हम आईएमएफ के पास वापस जाते हैं और आईएमएफ हमको बोलता है कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाएं और साथ ही साथ एनर्जी। सेल्स टैक्स चूँकि हमने ज़ीरो किया हुआ है वो राइट। भी बढ़ाएं। तो ये टोटल लगभग जो है आसपास तकरीबन 250 रुपये पर लीटर के आसपास प्राइस बन जाती है। तो 150 रुपये सो यू आर से वन टू ऑफ 250 दोस्त के लीटर। जो कह रहे हैं कि बुल रन नहीं को, दिस इज़ अ कमोडिटी सुपर साइकिल। ब्रदर, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। वाजिद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।